Hello students, the topic of today's discussion is organizational culture. In today's lecture, we are going to discuss what is organization, what is a culture, what is organizational culture, various types of organizational culture, importance of organizational culture, the various factors affecting the culture in an organization, and in the last part of the lecture we will discuss the 5 basic elements of a great organizational culture. So what is an organization? An organization is nothing but a common platform where individuals from different backgrounds come together and work as a collection unit to achieve a certain objective and the targets. The word organization is basically derived from the Greek word organon, is a setup where people join hands to earn a living for themselves as well as for the profit of the company. यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या संगठन एक ऐसी जगह है जहां पर विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति एक साथ आते हैं और कुछ उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक इकाई के रूप में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने जीवन यापन करने के साथ साथ कंपनी के मुनाफा कमाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक मंच पर आते हैं। An organization consists of individuals with different specialization, education qualification and work experiences, all working towards a common goal. Here the peoples are termed as employees. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग विशेषज्ञता वाले, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं जो एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। The employees are the major assets of an organization and contribute effectively in its successful functioning. It is essential for the employees to be loyal toward their organization and stay hard in furthering its brand image. An organization cannot survive if employees are not at all serious about it and treat their work as a burden. The employees must enjoy whatever they do for them to deliver their level best. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख संपत्ति हैं और इसके सफल कामकाज में प्रभावी योगदान करते हैं। कर्मचारियों के लिए अपने संगठन के प्रति वफादार होना और अपनी ब्रांड छवि को आगे बढ़ाने में कड़ी मेहनत करना बेहद ज़रूरी है। एक संगठन जीवित नहीं रह सकता अगर कर्मचारी इसके बारे में गंभीर नहीं है और अपने काम को बोझ मानते हैं। अतः कर्मचारियों को अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ वितरित करने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करना चाहिए और अपने काम में आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। Now let us discuss what is a culture. We can say the attitude, traits and the behavioral pattern which govern the way an individual interact with others is termed as culture. Culture is something which one inherits from his ancestors and it helps in distinguishing one individual from the other. यानी कि दृष्टिकोण, लक्षण और व्यवहार पैटर्न जो एक व्यक्ति को दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीकों को
नियंत्रित करते हैं, ऐसे रूप को हम संस्कृति और कल्चर कह सकते हैं। और हमारे संस्कार और ये संस्कृति ही है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, और यही एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करने में मदद करती है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज organization culture. Now, organization culture refer to the belief and the principles of a particular organization. The culture followed by organization has a deep impact on the employees and their relationships among themselves. As we know, every human being has certain personality traits which help them stand apart from the crowd. No two individuals behave in a similar way because of their personality, because of their culture. In the same way, the organization have certain values, policies, rules and guidelines which help them create an image of their own. Also, every organization has a unique culture, making it different from the other and giving it a sense of direction. It is essential for the employees to understand the culture of their workplace to adjust well. Now हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ व्यक्तिगत लक्षण होते हैं जो उन्हें औरों से अलग करते हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान तरीके से व्यवहार नहीं करते। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ मूल्य, नीतियाँ, नियम और दिशा निर्देश हैं जो उन्हें अपनी छवि बनाने में मदद करते हैं। सो व्हेन वी से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसका आशय किसी विशेष संगठन की मान्यताओं और सिद्धांतों से है। संगठन द्वारा अपनाई जाने वाली संस्कृति का कर्मचारियों और उनके बीच संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक अनूठी संस्कृति और कल्चर होता है जो इसे दूसरे से अलग करता है और इसे दिशा और नया रूप देता है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से समायोजित करने के लिए अपने कार्यस्थल की संस्कृति को समझना बेहद आवश्यक है। नाउ लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल। सपोज वी आर हैविंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन A and organization B. Now let us suppose in organization A the employees are not at all disciplined and are least bothered about the rules and the regulation of the organization. They reach their office at their own sweet time and spend their maximum time gossiping and toddling around. यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ए में जो भी कर्मचारी हैं वो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं हैं और कम से कम नियमों और विनियमों के बारे में परेशान हैं। वे अपने स्वयं के समय के अनुसार अपने कार्यालय में पहुंचते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त वो गपशप और घूमने फिरने में व्यतीत करते हैं। एंड on the other way around, we are having another organization B, and in this organization follows employees friendly policies and it is mandatory for all to adhere to them. It is important for the employees to reach their workplace on time and no one is allowed to unnecessarily roam around or spend rumors. यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बी है वो ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी हितैषी नीतियों को अपनाती है और सभी के लिए इन नीतियों और रूल्स का पालन करना ज़रूरी है।
कर्मचारियों के लिए अपने कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना इस बी ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण है और किसी को भी अनावश्यक रूप से घूमने या अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं है in case of organization B. So when we compare these two organization A and B, so which organization do we feel would perform better? The answer is very simple. Each and everyone will obviously say organization B is better in each and every aspect. So the employees follow a certain culture in organization B, making it more successful than organization A. No two organizations can have the same culture. The values or the policies of a non-profit organization would be different from that of a profit-making entity, or employees working in a restaurant would follow a different culture as compared to those associated with एजुकेशन इंडस्ट्री और ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द कल्चर जो होगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। वन इज स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग organizational culture refers to a situation where the employees adjust well, respect the organization's policy, and adhere to the guidelines. In such a culture, people enjoy working and take every assignment as a new learning and try to gain as much as they can. They accept their roles and responsibilities willingly. यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां कर्मचारी अच्छी तरह से समायोजित होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों का सम्मान करते हैं और दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ऐसी संस्कृति और कल्चर में लोग काम करने का आनंद लेते हैं और प्रत्येक असाइनमेंट को एक नई सीख के रूप में लेते हैं और जितना हो सके उतना अधिक पाने की कोशिश करते हैं तथा वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। These are the qualities of a strong organization culture. Second is weak organization culture. In such a culture, the individual accept their responsibilities out of fear of superior and harsh policies. The employees in such a situation do things out of compulsion. They just treat their organization as a mere source of earning money and never get attached to it. यानी हम कह सकते हैं कि जो वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो ऐसी संस्कृति को दर्शाते हैं जिसमें व्यक्ति वरिष्ठों, अपने सीनियर्स और हार्ड पॉलिसीज़ के डर से अपने जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी मजबूरी में काम करते हैं जिस वजह से वो दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर जॉब। वे सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कमाने का एकमात्र स्रोत मानते हैं और इससे कभी भी वे पूरी तरह से दिल से अटैच या जुड़ नहीं पाते। Now let us discuss the various types of organization culture. The practices, principles, policies and the values of an organization form its culture. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रथाएं, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ और उनके मूल्य इसकी संस्कृति या कल्चर को बनाते हैं। And the culture of an organization decides the way
employees behave amongst themselves as well as the people outside the organization. Now let us discuss various types of organization culture. Now the first culture is the normative culture. In such a culture, the norms and the procedure of organization are predefined and the rules and regulations are set as per the existing guidelines. यानी कि इस तरह के कल्चर में संगठन के मानदंडों और प्रक्रियाओं को पूर्व निर्धारित किया जाता है और मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों और विनियमों में का निर्धारण किया जाता है. The employees behave in an ideal way and strictly adhere to the policies of the organization. यानी कि जो कर्मचारी है, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो एक आइडल तरीके से, आदर्श तरीके से व्यवहार करते हैं और संगठन की नीतियों का कड़ाई से पालन करते हैं. No employees dare to break the rules and stick to the already laid policies. यानी कि कोई भी एम्प्लॉय नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता और पहले से रखी गई नीतियों से के साथ वो रहता है. The adhere to the policies laid down by the organization. Second type of culture is pragmatic culture. In a pragmatic culture, more emphasis is placed on clients and the external parties. Customer satisfaction is the main motive of the employees in a pragmatic culture. यानी कि इस तरह के कल्चर में एज वी कंपेयर इट विद द नॉर्मेटिव, यहाँ पर more emphasis is given to the client and the external parties. यानी कि जो कस्टमर्स और द ग्राहक हैं उन पर और जो बाहरी पक्ष हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. ग्राहकों की संतुष्टि उनका एक मेन उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो काम करते हैं. Such organizations treat their clients as goods and do not follow any set rules. Now this is very important factor कि they treat कि वो अपने जो ग्राहक है उसको भगवान की तरह मानते हैं और do not follow any set rules और किसी निर्धारित नियम का पालन नहीं करते हैं. Every employee strives hard to satisfy his clients to expect maximum business from their side. यानी कि जो प्रत्येक एम्प्लॉय है वो अपने ग्राहकों को उनकी ओर से अधिकतम व्यापार की उम्मीद करने के लिए कड़ी मेहनत करने का प्रयत्न करते हैं. सो इन दिस प्रैग्मेटिक कल्चर हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाए दैट इज़ ऑन द customer satisfaction and another is that client is go to them. So this is pragmatic culture. Another is third one is the academic culture. Now organization following academic culture hire skilled individuals. The role and responsibilities are delegated according to the background, education qualification and work experience of the employees. Organization following academic culture are very particular about training the existing employees. यानी कि the organization which follow this academic culture वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं. भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को कर्मचारियों के बैकग्राउंड, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनके वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव के अनुसार दिया जाता है. एंड
The very important factor is that the training part, training of the existing employee. They take due care of training to the employees. The employees in an academic culture stick to the organization for a longer duration and also grow within it. यानी कि जो इस तरह के कल्चर में जो लोग रहते हैं या जो काम करते हैं वो ज़्यादा समय तक उस संस्था के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ग्रो करते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स प्रैक्टिस सच ए कल्चर. यानी कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो इस तरह के कल्चर को बढ़ावा देते हैं या इस तरह के कल्चर में काम करते हैं. नेक्स्ट इज बेसबॉल टीम कल्चर. नाउ ए बेसबॉल टीम कल्चर कंसिडर द एम्प्लॉयज एज मोस्ट ट्रेजर्ड पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो बेसबॉल संस्कृति है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे कीमती चीज़ मानती है. इन सच ए कल्चर द इंडिविजुअल्स ऑलवेज हैव एन अपर एज एंड दे डू नॉट बोदर मच अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ऐसे कल्चर में व्यक्तियों के पास हमेशा एक ऊपरी किनारा और अपर एज होती है और वे अपने संगठन के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कल्चर द एम्प्लॉयज आर द ट्रू एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव ए मेजर रोल इन इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग. यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सच्ची संपत्ति होते हैं जिनकी सफल कार्यप्रणाली के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सफल होता है. और हम कह सकते हैं कि जैसे वो काम करेंगे उसी हिसाब से उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है दैट इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कार्य प्रणाली ऑफ द एम्प्लॉयज. The advertising agencies, event management companies, financial institution follow such a culture, that is baseball team culture. Next culture is the club culture. Organization following a club culture are very particular about the employees they recruit. The individuals are hired as per their specialization, education qualification and interest. Each one does what he is best at. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्लब कल्चर का पालन करने वाले संगठन अपने द्वारा भर्ती किए जाने वाले कर्मचारी के बारे में बहुत खास होते हैं. व्यक्तियों को उनकी विशेषज्ञता, शैक्षणिक योग्यता और हितों के अनुसार काम पर रखा जाता है. हर एक वही करता है जो वह सबसे अच्छा करने के काबिल होता है. द हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड सुटेबली एंड अप्रेजल्स आर अ रेगुलर फीचर ऑफ सच कल्चर. यानी कि उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पदोन्नत किया जाता है और मूल्यांकन ऐसी संस्कृति की एक नियमित विशेषता है. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द फोर्ट्रेस कल्चर. There are certain organizations where the employees are not very sure about their career and longevity. Such organizations follow fortress culture. यानी कि कुछ ऐसे संगठन हैं जहां कर्मचारी अपने कैरियर और दीर्घायु के बारे में श्योर नहीं होते. ऐसे संगठन
इस तरह की संस्कृति का पालन करते हैं। The employees are terminated if the organization is not performing well. Individuals suffer the most when the organization is at loss. यानी कि यदि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो एम्प्लॉइज को नौकरी से हटा दिया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में उन व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान होता है जो कि वहाँ काम करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज फॉलो सच ए कल्चर। वी कैन से दिस टाइप ऑफ कल्चर इज अडोप्टेड बाय द stock broking industries. Next is tough guy culture. Now in a tough guy culture, feedback are essential. Now this is one of the main point. The feedback are essential in a tough guy culture system. The performance of the employees is reviewed from time to time and their work is thoroughly monitored. Now जैसे बताया मैंने कि इस तरह के कार्य प्रणाली में जो फीडबैक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के प्रदर्शन की समय समय पर समीक्षा की जाती है और उनके काम की पूरी निगरानी की जाती है। टीम मैनेजर्स आर अपॉइंटेड टू डिस्कस क्वेरीज with the team members and guide them whenever required. यानी कि टीम के सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए मैनेजर्स, जो टीम मैनेजर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं और वो उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। The employees are under constant watch in such a culture. यानी कि इस तरह के कल्चर में जो कर्मचारी हैं वो निरंतर निगरानी में रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर इज बी योर कंपनी बेट योर कंपनी कल्चर। नाउ ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलो बेट योर कंपनी कल्चर टेक डिसीजन विच इन्वॉल्व ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क एंड consequences are also unforeseen. The principles and policies of such an organization are formulated to address sensitive issues and it take time to get the results. यानी कि जो कंपनियां बेट योर कंपनी कल्चर फॉलो करते हैं ऐसे कंपनियां निर्णय लेते हैं जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में जोखिम होता है और परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं। ऐसे संगठन के सिद्धांतों और नीतियों को संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किया जाता है और परिणाम प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस कल्चर। नाउ as the name suggests, the employees in such a culture adhere to the processes and procedures of the organization. Feedbacks and performance review do not matter much in such type of organization. The employees abide by the rules and regulation and work according to the ideologies of the workplace. All government organization follow such a culture. यानी कि इस तरह के कल्चर वाले ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी संगठन की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रतिक्रिया और प्रदर्शन की समीक्षा ज़्यादा मायने नहीं रखती है। यानी कि फीडबैक एंड द परफॉर्मेंस रिव्यू दे डजंट
matter much in such type of organization, और एम्प्लॉयज नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और कार्यस्थल की विचारधारा के अनुसार ही काम करते हैं। सभी सरकारी संगठन इस कल्चर का पालन करते हैं। Now these cultures have a very high importance in any organization. Now let us discuss the importance of organization culture. A common platform where individuals work in unison to earn profits as well as a livelihood for themselves is called an organization. A place where individuals realize the dream of making it big is called an organization. Every organization has its unique style of working, which often contributes to its culture. The beliefs, ideologies, principles, and values of an organization form its culture. The culture of the workplace controls the way employees behave among themselves as well as with the people outside the organization. यानी कि एक सामान्य मंच जहाँ व्यक्ति लाभ कमाने के लिए एक साथ काम करते हैं और साथ ही साथ अपने लिए एक आजीविका संगठन भी करते हैं। एक ऐसी जगह जहां व्यक्तियों को बड़े बनाने के सपने का एहसास होता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की कार्य करने की अपनी अनूठी शैली होती है, जो अक्सर अपनी संस्कृति और कल्चर में योगदान देती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की मान्यताएं, विचारधाराएं, सिद्धांत और मूल्य उसकी कल्चर का निर्माण करते हैं। कार्यस्थल की संस्कृति एम्प्लॉइज के संगठन के साथ साथ लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीकों को भी नियंत्रित करती हैं। Now let us discuss the importance of the organizational culture one by one. The first very important point is the culture decide the way employees interact at their workplace. यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्कृति है वो डिसाइड करती है कि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो आपस में अपने कार्य क्षेत्र में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। A healthy culture encourages the employees to stay motivated and loyal toward the management. यानी एक स्वस्थ कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों को प्रबंधन के प्रति प्रेरित और वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। Now the second point is the culture of workplace also goes a long way in promoting healthy competition at the workplace. Employees try their level best to perform better than their fellow workers and earn recognition and appreciation of the superiors. It is the culture of workplace which actually motivates the employees to perform. यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क प्लेस का कल्चर भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करता है। कर्मचारी अपने साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने और सीनियर्स की मान्यता और प्रशंसा अर्जित करने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यह वर्कप्लेस का कल्चर ही है जो वास्तव में कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। Now the next is every organization must have set guidelines for employees to work accordingly. The culture of an organization represents certain predefined policies which guide the employees and give them a sense of direction at the workplace.
every individual is clear about his role and responsibility in the organization and know how to accomplish the task ahead of the deadlines. यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज़ के अनुसार काम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कुछ पूर्व निर्धारित नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें कार्यस्थल पर दिशा का एहसास दिलाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट होता है और समय सीमा से पहले कार्य को पूरा करना जानता है। Now the next point is, no two organization can have the same work culture. It is the culture of an organization which make it distinct from others. The work culture goes a long way in creating the brand image of the organization. The work culture give an identity to the organization. In other words, an organization is known by its culture. यानी कि किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन में समान कल्चर नहीं हो सकता। यह एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो इसे दूसरों से अलग करता है, अलग बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज बनाने में भी उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को एक पहचान देती है, या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर से ही जाना पहचाना जाता है। Now the next importance of work culture is the organization culture brings all employees on a common platform. The employees must be treated equally and no one should feel neglected or left out at the workplace. It is essential for employees to adjust well in the organization culture for them to deliver their level best. यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो ही है जो हर एम्प्लॉय को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आता है। हर एक एम्प्लॉय के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी को भी कार्यस्थल पर खुद को उपेक्षित या निगलेक्टेड फील नहीं होना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की होती है। एम्प्लॉयज़ के लिए यह भी ज़रूरी है कि वे अपने लेवल पर अपने स्तर को बेहतरीन तरीके से वितरित करने के लिए संगठन की जो भी कल्चर है उसको अच्छी तरह से निभाएं और उसमें समायोजित होकर कार्य करें। The next point is the work culture unites the employees who are otherwise from different backgrounds. Now, the person working in an organization are from different backgrounds, families, and have varied attitude and mentalities. The culture gives the employees a sense of unity at the workplace. Certain organizations follow a culture where all the employees, irrespective of their designation, have to step into the office on time. Such a culture encourages the employees to be punctual, which eventually benefits them in the long run. It is the culture of the organization which makes the individual a successful professional. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है वो जो जितने भी उसके कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एकजुट करती है, जो कि अलग अलग
जगहों से आए हुए होते हैं, अलग अलग परिवारों से होते हैं और उनके पास विभिन्न दृष्टिकोण और मानसिकताएं होती हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों को, ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है वो ही एक साथ लेके आता है और वही वर्क कल्चर उन सभी कर्मचारियों में एक यूनिटी की भावना, एक एकता की भावना भरता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी संस्कृति का पालन करते हैं जहां सभी कर्मचारी अपने पद नामों के बावजूद समय पर कार्यालय में कदम रखते हैं, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वर्क कल्चर होता है कि हर एक किसी को टाइम से आए, चाहे वो बॉस हो या कोई सामान्य वर्कर हो। इस तरह का जो कल्चर है जो कि समय के पाबंद बनाते हैं वो सभी को प्रोत्साहित करता है और ये सब चीज़ें उनको एक लंबे समय में फ़ायदा पहुंचाती है, ना केवल उनको पर्सनल फ़ायदा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा पहुंचाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है वो उनके एम्प्लॉयज़ को एक सफल प्रोफेशनल बनाता है। नेक्स्ट, implementation of policies is never a problem in organization where people follow a set culture। यानी कि नहीं, पॉलिसीज़ को यदि हमने इम्प्लीमेंट करना है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक दिक्कत की बात नहीं होगी यदि उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग किसी कल्चर को, एक सेट कल्चर को फॉलो करते हैं। Every employee is clear with his role and responsibilities and strive hard to accomplish the task within the desired time frame as per the set guidelines. So we can say implementation of policies is never a problem in an organization where people follow the set rules. The new employees also try their level best to understand the work culture and make the organization a better प्लेस टू वर्क। यानी कि जो नया कर्मचारी भी आएगा वो भी उसी वर्क कल्चर को फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कार्य करने की जगह समझता है और उसे बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क कल्चर प्रमोट्स हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉयज। No one treats work as a burden and mold himself according to the culture। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है वो उसके कर्मचारियों, एम्प्लॉयज़ के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देता है और ऐसे कल्चर में कोई भी व्यक्ति एक बोझ के रूप में काम को नहीं लेता और उस संस्था के कल्चर के अनुसार खुद को ढाल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ विच ईच टीम member। In a culture where management is very particular about the reporting system, the employees, however busy they are, would send their reports by end of the day. No one has to force anyone to work. The culture develops a habit in the individual which makes them successful at the workplace। यानी यह उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही है जो प्रत्येक टीम के मेंबर से सर्वश्रेष्ठ निकालता है। और ऐसे कल्चर में एक व्यक्ति में एक आदत विकसित हो जाती है जिससे कि वो अपना कार्य समय पर करते हैं और वो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने काम को एंजॉय कर अपने काम को पूरा करते हैं। और यही वो संस्कृति है, यही वो कल्चर है जो उन्हें कार्यस्थल पर
सफल बनाती है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स which are going to affect an organization culture. The culture represents the beliefs, ideologies, policies, practices of an organization. It gives the employees a sense of direction and also control the way they behave with each other. The work culture brings all employees on a common platform and unite them at the workplace. यानी कि जो कल्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की मान्यताओं, विचारधाराओं, नीतियों, प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह एम्प्लॉइज़ को एक डायरेक्शन देता है और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीकों को भी कंट्रोल करता है। वर्क कल्चर सभी एम्प्लॉइज़ को एक साझा मंच प्रदान करता है और उनको एक साथ एकजुट करने में मदद करता है। नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर वन बाय वन. The first and the foremost factor affecting culture is the individual working within the organization. The employees in their own way contribute to the culture of the workplace. The attitude, mentalities, interest, perception, and even the thought process of employees affect the organization culture. यानी कि कल्चर को प्रभावित करने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है व्यक्ति, वहाँ काम करने वाला व्यक्ति। एम्प्लॉइज़ अपने तरीके से वर्क प्लेस के कल्चर में योगदान करते हैं। एम्प्लॉइज़ की मनोवृत्ति, उनकी मानसिकता, रुचि, धारणा, यहाँ तक कि विचार प्रतिक्रिया संगठन के कल्चर को प्रभावित करती हैं। Let us take an example to further understand this. Organizations which hire individuals from army or defense background tend to follow a strict culture where all employees abide the set guidelines and the policies. The employees are hardly late to work. It is the mindset of the employees which form the culture of the place. Organization with majority of youngsters encourages healthy competition at the workplace and employees are always on toes to perform better than the fellow worker. यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि किसी आर्मी पर्सन को या जिसका डिफेंस बैकग्राउंड है ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ रखती है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो गाइडलाइंस को फॉलो करने वाला होगा और वैसा ही कल्चर वो ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने कार्य में लेट नहीं होगा और ये लोगों का माइंडसेट ही है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाती हैं। If the employees are young, then the organization will develop a healthy competition among themselves at the workplace. और ऐसे कर्मचारी हमेशा साथी कर्मचारियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। Now the second factor is the sex of the employee also affect the organization culture. Organizations where male employees dominate the female counterparts follow a culture where late sitting is a normal feature. The male employees are more aggressive than the female who instead would be caring and soft-hearted. तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें
पुरुषों की संख्या या जहाँ पर पुरुष डोमिनेट करते हो वहाँ पर एक ऐसा कल्चर होगा जहाँ पर देर तक बैठना या देर तक काम करना एक सामान्य सी प्रक्रिया होगी। पुरुष कर्मचारी महिलाओं की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं, जो इसकी बजाय यदि हम कंपेयर करें पुरुषों के मुकाबले तो महिलाएं ज़्यादा देखभाल करने वाली होती हैं। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे यदि महिला कर्मचारियों की या पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो उसी के अनुसार वहाँ का वर्क कल्चर भी डेवलप होगा। Now the next factor is the nature of the business. The nature of the business also affect the culture of the organization. Stock broking industries, financial services, banking industry are all dependent on external factors like demand and supply, market cap, earning per share and so on. When the market crashes, these industries have no other option than to terminate the employees and eventually affect the culture of the workplace. Market fluctuation lead to unrest, tension and severely demotivate the individuals. The management also feels helpless when circumstances can be controlled by none. Individuals are unsure about their career as well as the growth in such organization. यानी कि जो बिजनेस का नेचर है वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रभावित करता है। स्टॉक ब्रोकिंग उद्योग, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग उद्योग सभी बाहरी कारकों जैसे मांग और आपूर्ति ऐसे चीज़ों पर निर्भर है। जब बाज़ार में स्लम आता है तो ऐसे उद्योगों के पास कर्मचारियों को हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता और लास्टली इस तरह की चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। बाज़ार में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी तनाव है, वो वहाँ के उस ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। प्रबंधन भी अपने आप को असहाय महसूस करता है जब परिस्थितियों को किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट बट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऐसे केसेस में व्यक्ति अपने कैरियर के साथ साथ ऐसे संगठनों में वृद्धि के बारे में अनिश्चित होते हैं। सो दिस इज हाउ द नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. The next factor is the culture of organization is also affected by its goals and its objectives. Yes, the strategies and procedures designed to achieve the target of organization also contribute to the culture. Individuals working with government organization adhere to the set guidelines but do not follow a procedure of feedback, thus forming its culture. Fast paced industries like advertising, event management companies expect the employees to be attentive, aggressive and hyperactive. यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो उसके गोल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के और उसके उद्देश्य क्या हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी इसी कल्चर में योगदान करती हैं।
So goals and objective also affect the culture of any organization. The next factor is the client and the external parties. To some extent also affect the work culture of the place. Organization catering to UK and US clients have no other option but to work in shift to match their timing, thus forming culture. यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइंट हैं और जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रभावित करती हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट यूके और यूएस में हैं तो उनके पास शिफ्ट में काम करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा. सो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो उसकी संस्कृति में या उसके कल्चर में शामिल हो जाएंगी. सो वी कैन से the client and the external parties to whom the organization is dealing will also affect the culture of that particular organization. Now the next factor which affect the organization culture is the management and its style of handling the employees. This also affect the culture of the workplace. There are certain organizations where the management allow the employees to take their own decision and let them participate in strategy making. यानी कि कुछ जो मैनेजमेंट है उसके काम करने का तरीका और वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करती है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रभाव डालती हैं. यहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जहाँ पर मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को निर्णय लेने में तथा कोई स्ट्रेटजी बनाने में अपने साथ रखती है. ऐसे कल्चर में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को मैनेजमेंट के साथ अटैच महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो जो इनका ये एसोसिएशन है जो उनका साथ है लंबे समय तक रहे. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार रहते हैं तथा पूर्ण रूप से दिल से काम करते हैं. मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट करे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते बल्कि अपने आप को उससे दिल से अटैच महसूस करते हुए काम करते हैं. Now in the last portion of our lecture, let us study the 5 elements of great organizational culture. The first element is purpose. Going back to the premise that we have a greater sense of ethics and empathy, we are less selfish and we want to be a part of solving a problem greater than ourselves. We need to understand the why of what we do. Companies now need to have a strong mission statement where they can share the why with their team members. यानी हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम क्या करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन को अब एक स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट रखने की आवश्यकता है जहां वे अपनी टीम के सदस्य को क्यों साझा कर सकें. यानी वो उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को साझा करना. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. Now related to this, there is an example of a company SpaceX that builds rocket for space exploration. This is their mission statement that SpaceX
was founded in 2002 to revolutionize space technology with the ultimate goal of enabling people to live on other planets. Now, that's mission statement. That's something bigger than anybody. The next element is ownership. The second element in building a great organizational culture is ownership. Ownership is about giving people the opportunity to be accountable for their results without being micromanaged. Giving people the autonomy over their time to accomplish their goals. ओनरशिप का यहाँ पर हमारा मतलब है कि हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने रिजल्ट्स के प्रति जवाबदेह हों और उनको काम में स्वायत्तता दी जाए, उनको समय में स्वायत्तता दी जाए ताकि वो अपने गोल्स को अपने टाइम के हिसाब से अचीव कर सकें। बेस कैंप इज़ ए कंपनी that builds software for project management. There are a great example of company that promotes ownership. They have an office in Chicago, but everyone has the chance to work from wherever they want. The CEO does not know how many hours his employees work. They just set expectation and give people the opportunity to build their own schedule around their project. But how do you keep people engaged with a sense of purpose? Well, you do that through the third element, community. यानी कि जो ये बेस कैंप कंपनी है विच इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाती है. नाउ दिस कंपनी इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ओनरशिप. उसके पास, इस कंपनी के पास शिकागो में एक कार्यालय है, लेकिन हर किसी के पास जहाँ भी वे चाहते हैं वहाँ से काम करने का उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ को मौका है. CEO है जो इस कंपनी का, उसको नहीं पता कि उसके कर्मचारी कितने घंटे काम करते हैं. वे बस टारगेट सेट करते हैं और लोगों को अपनी परियोजनाओं के आसपास अपना कार्यक्रम बनाने का अवसर देते हैं. लेकिन आप कैसे लोगों के उद्देश्य की भावना से जोड़े रख सकते हैं, इसको हम हमारे थर्ड एलिमेंट कम्युनिटी के माध्यम से समझेंगे. नाउ द थर्ड एलिमेंट इज द कम्युनिटी. कम्युनिटी इज दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर द सेम और सिमिलर प्रिंसिपल्स, गोल्स एंड वैल्यूज. फोकस लैब is a branding and design company that understand community. They have company standards instead of values. Their argument is that you cannot change a person's value when they walk into your company, but you can uphold everyone to specific standards. Some of their standards are work to live, ask more questions, and never stop learning. The culture of their company breathes these standards through their work. Building community is something as simple as having lunch and learns, hangout times on Fridays, and company trips. It varies from company to company. Community is unique to each organization. जो ये फोकस लैब कंपनी है, उनके पास मूल्यों के बजाय अपने कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं. उनका लॉजिक ये है कि जब कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आता है
तो वो व्यक्ति अपने वैल्यूज़ को नहीं बदलता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आप बनाए रखें और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो व्यक्ति काम करता है। उस कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड हैं जो मैंने बताए कि जीने के लिए काम करना, अधिक प्रश्न पूछना और कभी भी सीखना बंद ना करना। उनकी कंपनी की संस्कृति उनके काम के माध्यम से इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। Now the next element is the effective communication. The fourth element in building a great organizational culture is effective communication. Effective communication sounds like common sense, but through my work I have realized it is not common practice. It means consistency in processes and investing time learning the personalities and communication dynamic of team members. Google created a research project called Project Aristotle, where they found that the most collaborative teams are the ones where everyone speaks equally. In many of their engineering teams, they have a list which check mark to make sure everyone is speaking the same number of times during their meetings. यानी कि गूगल ने जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया उसमें उसने पाया कि सबसे अधिक सहयोगी दल वही है जहां हर कोई समान रूप से बोलता है। अपने कई इंजीनियरिंग टीमों में उनके पास चेकमार्क के साथ एक सूची भी है जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हर कोई मीटिंग्स में सेम नंबर ऑफ टाइम्स बोल रहा है। सो दिस इज हाउ दे शो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन in building a effective culture. Now the last but not the least element of organizational culture is good leadership. I would say this is the backbone of cultural dynamic of any organization. The leader has to be constantly be pushing the mission, standards, community and processes of the company. Without effective leadership, the other four elements cannot thrive. People want leadership with integrity and compassion. People want authenticity. People want a leader who is clear on expectation. People want to know they have a leader who cares about them. तो यदि अच्छा नेतृत्व है तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गुड लीडरशिप है दैट एक्ट एज ए बैकबोन। जो लीडर है जो अच्छा लीडर है वो कंपनी के मिशन, स्टैंडर्ड्स, कम्युनिटी और जो प्रोसेसेस हैं उनको आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग करता है। इफ़ेक्टिव लीडरशिप के बिना जो ऊपर हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। लोग ईमानदारी और करुणा के साथ नेतृत्व चाहते हैं, लोग प्रामाणिकता चाहते हैं, लोग ऐसा लीडर चाहते हैं जो उम्मीदों पर खरा उतरे, लोग जानना चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा लीडर है जो उनकी परवाह करता है। सो फ्रॉम दिस द elements I just mentioned are not new to people. People have always liked purpose,
ownership, community, effective communication, and good leadership. It's in our own human nature. But now we found words to describe those things to build high performing cultures. I would like to encourage each of you to be intentional about applying these elements and building great culture in your organization. So, friends, this is all for today's lecture. Thanks for listening my lecture. Have a very nice day.